Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the common ion effect. Let's start. Assalamu alaikum ji. In this video we are going to discuss the common ion effect के common ion effect की वजह से solubility पे क्या effect होता है, how crystallization is affected by the common ion and ionization of any substance किस तरह से affect हो सकती है common ions की वजह से, और we'll also discuss the buffer solution और pH का concept बड़ा important होता है. different relationships होते हैं हमारे पास. pH होता क्या है, how can we identify the acidic strength by using that thing, और basic nature of this substance को किस तरह से use किया जा सकता है, POH क्या होती है. So बेटा ये तमाम numerical based और theoretical based questions को cover up करेंगे after discussing the common ion effect. common ions का effect, ठीक है. तो बेटा the first thing you can see few terminologies over here: crystallization, association of ions, solubility and ionization. बेटा एक solution है, अगर उसी solution में if we will add another substance जिसकी वजह से कोई common ion create हो जाता है, so बेटा it will increase the crystallization process. crystallization process क्या होता है? What is crystallization? It is a purification process. salts को purify करना होता है तो we have to use the crystallization process. crystals की formation की जाती है. देखें आपके पास एक solution है, for example you have a solution of NaCl. NaCl का solution है, we have to heat that solution. heat करते हैं, heat करने से water evaporate होता रहेगा and after evaporation लिक्विड की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और सॉल्ट तो वहीं पे है, NaCl वहीं पे है, वाटर इवेपोरेट होता जा रहा है. तो बेटा इट बिकम्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन दैट हैज द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ द सॉल्यूट. तो बेटा मैक्सिमम कंसंट्रेशन जब सॉल्यूट की किसी सॉल्यूशन में होती है तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन जैसे ही बन जाता है विल प्लेस दैट सॉल्यूशन टू कूल. आफ्टर कूलिंग the crystals starts forming. तो crystals की जो formation start होएगी that is called as purified NaCl. ठीक है, तो NaCl की ये purified form आपको मिली है crystals की सूरत में. so crystallization purification process होता है. so it means common ions की वजह से क्या होएगा, crystallization increase हो जाती है, crystals ज्यादा बनेंगी. crystals ज्यादा बन रही है, it means प्योरीफाई ज्यादा होता जाएगा, प्योरिफिकेशन प्रोसेस ज्यादा होएगा. एसोसिएशन ऑफ आयंस होएगी, आयंस मिलेंगे और एक कंपाउंड बनने लग गया है, आयन एक कंपाउंड बनने लग गया है. सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी. कॉमन आयंस की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है. सॉल्युबिलिटी अगर डिक्रीज कर रही है इट मींस लेस सॉल्युबल कंपाउंड्स की तरफ फॉर्मेशन होने लग जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि प्रेसिपिटेट्स बनने लग गए. ठीक है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होएगी. आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाती है. सो कॉमन आयन के ये तमाम इफेक्ट्स हैं. इट सप्रेसेस द आयोनाइजेशन, डिक्रीजेस द आयोनाइजेशन, इट डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी एज वेल एंड इंक्रीजेस द प्योरिफिकेशन ऑफ एनी सॉल्ट या कंपाउंड कह सकते हो. क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है एंड एसोसिएशन ऑफ आयंस भी इंक्रीज हो जाती है. So we'll discuss all these points through different examples now. अब देखते हैं जी NaCl. बेटा I have taken these two equations. NaCl है. After adding into the water, it will dissociate into the ions. Na positive बन गया, Cl negative बन गया. I have taken another compound in this. HCl को भी मैंने add किया. So बेटा H positive और Cl negative ions भी वहां पे produce हो गए. So we can observe some common ions over here. Cl यहां पे भी है, Cl यहां पे भी है. So these are common ions. अब इन common ions का effect क्या है? What is the effect of these ions? Common ions की presence की वजह से बेटा crystals
की फॉर्मेशन होएगी. सो दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl. प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl, यानी कि Cl के ज्यादा होने की वजह से NaCl बनने लग जाएगा. NaCl बनने लग गया है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स और ये प्योरीफाई होता जाएगा. सो प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl किस तरह से हो रही है? क्रिस्टल्स ऑफ NaCl की फॉर्मेशन की वजह से. सो लेट्स डिस्कस अनदर एग्जांपल. बेटा नाउ वी हैव अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड. तो बेटा टेल मी इनके आयंस क्या क्या बनेंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ बेस, NH4 पॉजिटिव बन गया प्लस OH नेगेटिव बन गया. ठीक है. अमोनियम क्लोराइड जब इसमें हम ऐड करेंगे, व्हाट विल हैपन? इट विल डिसोसिएट इनटू द आयंस. NH4 पॉजिटिव बन गया एंड Cl नेगेटिव बन गया. बेटा अब आयंस कौन से कॉमन है? वी हैव दीज टू कॉमन आयंस. अमोनियम आयंस ज्यादा होते जा रहे हैं. अमोनियम आयंस के ज्यादा होने से क्या हुआ है? NH4 जैसे ही हम ऐड करते जा रहे हैं तो OH की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी. OH की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, यानी कि ये सॉल्युबिलिटी जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, इट डिक्रीजेस बाय एडिंग NH4Cl solubility of अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है, इट डिक्रीजेस. बेटा अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिक्रीज हो रही है, इट मींस इट विल डिसोसिएट लेस हाइड्रोक्साइड आयंस. लेस हाइड्रोक्साइड आयंस हुए यानी कि कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिक्रीज हो गई, तो इट मींस लेस बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा. बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. Please remember these concepts with the acidic strength, with the basic strength. So by adding NH4Cl in the solution of ammonium hydroxide, what will happen? तो बेटा बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा. बेसिक कैरेक्टर के डिक्रीज होने का मतलब क्या है? कि pH उसकी डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है, जितनी pH बढ़ती जाएगी बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा. pH वैल्यू ज्यादा होएगी, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है. pH कैरेक्टर कम होता जा रहा है, pH वैल्यू कम होती जा रही है, तो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होती जा रही है. pH वैल्यू जितनी कम है उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और बेसिक स्ट्रेंथ कम है. सो बेटा होप सो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है. कॉमन आयंस की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है और सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिक्रीज होने से क्या हुआ है? बेसिक कैरेक्टर उसका डिक्रीज होने लग गया है. इट इज नॉट डिसोसिएटिंग मोर हाइड्रोक्साइड आयंस नाउ. अगर हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट नहीं हो रहे, इट मींस बेस के तौर पे वो एक्ट नहीं कर रही या बेसिक कैरेक्टर उसका कम होता जा रहा है. सो नाउ ओवर द लास्ट एग्जांपल वी हैव KClO3, दैट इज पोटेशियम क्लोरेट. बेटा इसके आयंस क्या बनेंगे? इट विल डिसोसिएट इनटू द आयंस इन दिस वे. K पॉजिटिव बनेगा एंड ClO3 क्लोरेट आयन बन जाएगा. एंड इन अ सिमिलर मैनर K पॉजिटिव बन गया एंड Cl नेगेटिव बन गया. बेटा K पॉजिटिव दोनों तरफ मौजूद है. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ common ions in both examples, in both equations, we have potassium ion that is common. It suppresses the solubility of KClO3. बेटा KClO3 ऑलरेडी ये लेस सोल्यूबल होता है, पार्शली सोल्यूबल है पोटेशियम क्लोरेट. तो आपने उससे ज्यादा सोल्यूबल सॉल्ट को ऐड किया, दैट इज KCl. KCl की एडिशन से solubility of KClO3 decreases. Solubility of KClO3 decreases by adding
KCl. Why? Because of this common ion. तो बेटा यही रूल्स आपसे एग्जाम में इसी तरह से पूछे जा सकते हैं. आई एम नॉट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस इन ऑप्शंस फॉर्म, लेकिन यही क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जा सकते हैं जो ऑप्शंस मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं. सो बाय एडिंग KCl the solubility of KClO3 क्या हो जाएगी? Decreases. ठीक है. सो बेटा कॉमन आयन इफेक्ट को ही यूज किया जाता है बफर सॉल्यूशन में. बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? दो सॉल्यूशंस व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन द पीएच. Those solutions which resist resists the change in pH. बेटा ये बहुत ज़्यादा कई मरतबा क्रूशल हो जाता है पीएच वैल्यूज़ को मेंटेन रखना. समटाइम्स इट इज़ वेरी नेसेसरी. फॉर एग्जांपल जो हमारे ब्लड की पीएच है दैट इज़ अराउंड 7.35 to 7.4. तो बेटा ये पीएच इतनी ही मेंटेन होनी चाहिए. अगर पीएच बहुत ज़्यादा कम हो जाए, फॉर एग्जांपल 7.1 पे आ जाए, 7.0 पे आ जाए और इट इंक्रीजेस 7.8 हो गए, 7.9 हो जाए अगर ब्लड की पीएच, तो अ पर्सन मे डाई इन दिस वे. तो पीएच में जो चेंज आता है उसको रेजिस्ट करता है बफर सॉल्यूशन. वी हैव टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन. नंबर वन इज बेसिक बफर एंड द सेकंड वन इज द एसिडिक बफर. बेसिक एंड एसिडिक बफर. बेटा आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर ओवर हियर. ये जो बेसिक बफर होता क्या है? जितने भी बफर सॉल्यूशन होते हैं दीज ऑल आर द मिक्सचर्स. मिक्सचर्स किन के होते हैं? इफ वी हैव अ बेसिक बफर तो बेटा मिक्सचर होएगा जिसमें हमने यूज करना है वीक बेस को along with its salt. For example, we have ammonium hydroxide or ammonium chloride. We can take this solution जो कि बेसिक बफर होएगा. We have NH4OH plus NH4Cl. This solution is called as a basic buffer. इसका जो mixture होएगा. And similarly we have acidic buffer. Acidic buffer में क्या होएगा? Weak acid and its salt. अब acidic buffer में I have taken this ethanoic acid and sodium ethanoate CH3COOH, that is also known as acetic acid. बेटा जैसे ही आपने इसको वाटर में ऐड किया इट इज अ वीक एसिड. तो वीक एसिड के आयंस जो बनेंगे दैट इज एथेनोएट आयन CH3COO नेगेटिव, H3O पॉजिटिव. वाटर हैज टेकन वन हाइड्रोजन आयन फ्रॉम दिस एसिड तो H3O पॉजिटिव बन गया. सिमिलरली जब मैंने इसका सॉल्ट लिया, वीक एसिड का सॉल्ट लिया, यानी कि ये हाइड्रोजन आई हैव रिप्लेस विद द मेटल, तो ये सॉल्ट बन जाता है. तो उसकी डिसोसिएशन की तो आई हैव टेकन वी गॉट CH3COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव. तो बेटा इन दिस केस अगेन वी हैव अ कॉमन आयन. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कॉमन आयन इफेक्ट को ही यहां पे यूज किया जाता है. सो बाय एडिंग CH3COONA in the mixture, what is happening? Beta, by adding CH3COONA क्या हो रहा है? कॉमन आयंस प्रोड्यूस हुए. बेटा जैसे ही कॉमन आयंस प्रोड्यूस हुए तो आयनाइजेशन ऑफ CH3COOH डिक्रीज हो जाएगी. आयनाइजेशन डिक्रीजेस. आयनाइजेशन ऑफ
CH3 COOH decreases. बेटा अगर CH3 COOH एथेनोइक एसिड की आयनाइजेशन डिक्रीज हो गई, इट मींस वी विल हैव लेस हाइड्रोजन आइंस. एग्री? बेटा अगर लेस हाइड्रोजन आइंस होते हैं तो इट मींस पीएच वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी. लेस हाइड्रोजन आइंस है, इट मींस लेस एसिडिक है. इट मींस लेस एसिडिक, और लेस एसिडिक है तो पीएच वैल्यू उसकी ज्यादा होती जाएगी. ठीक है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा उतनी ही पीएच कम होती है. सो वी हैव अ स्केल ऑफ द पीएच. लेट मी मेंशन दैट. यहां पे मेंशन कर लेते हैं जी पीएच स्केल को ओवर हियर. ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 और ये है 14. वी हैव अ सेंटर दैट इज 7. बेटा यहां पे तमाम होते हैं एसिड्स. इफ द पीएच वैल्यू इज इन बिटवीन 0 to 7 तो यहां पे एसिड्स होते हैं. वी हैव बेस इन दिस रीजन. जितना 7 से अवे करते जाएंगे उतने ही एसिड्स भी स्ट्रांग होते जाएंगे, उतनी ही बेस भी स्ट्रांग होती जाएगी. सो आफ्टर 10 11 12 13 14 ये सॉल्यूशंस हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होएगी. SB लिख देता हूं मैं यहां पे, स्ट्रॉन्ग बेस. सो दीज आर वीक बेसिस. सिमिलरली बेटा 4 से जो कम है दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड जो 5 6 और 7 से कम वाली है दैट इज वीक एसिड. ठीक है, सो ये रेंजेस हैं हमारे पास एसिड्स की और बेसिस की. जितनी ज्यादा देखें पीएच इंक्रीज करती जा रही है, बेसिक करैक्टर बढ़ता जा रहा है और एसिडिक करैक्टर कम होता जा रहा है. जितनी ज्यादा पीएच कम होती जा रही है तो एसिडिक करैक्टर बढ़ता जा रहा है और बेसिक करैक्टर डिक्रीज होता जा रहा है. सो दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट ओवर हियर. तो बेटा होप सो बफर सॉल्यूशन जो कि यूज किया जाता है किसी भी पीएच में वेरिएशन जो आ रही होती है उसको रेजिस्ट करने के लिए. सो एसिडिक बफर की एग्जांपल को यूज किया. इसी तरह से बेसिक बफर में भी वी डिस्कस के अमोनियम आइंस बन जाते हैं विच डिक्रीजेस द आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से लेस हाइड्रोक्साइड आइंस होंगे. लेस हाइड्रोक्साइड आइंस होंगे तो इसका मतलब है बेसिक करैक्टर कम हो गया है तो पीएच उसकी डिक्रीज होती जा रही है. सो एग्जामिनर कैन आस्क द क्वेश्चंस इन दिस वे. यहाँ पे एक और चीज आपने याद रखनी है बेटा, बफर सॉल्यूशन जब भी आ जाएंगे उसकी पीएच निकालने को अगर आपको कहा जाए सो वी हैव टू यूज हेंडरसन इक्वेशन इन दैट वे. हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है बेटा? इट इज अ इक्वेशन टू फाइंड आउट द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशंस. pH equals to pKa plus log into salt over acid. दिस इज द एक्सप्रेशन. बेटा अब pH का और pKa का आपस में क्या रिलेशनशिप है? इफ वी विल हैव द सेम वैल्यूज ऑफ सॉल्ट और एसिड की अगर कंसेंट्रेशन इक्वल होएगी तो बेटा ये तो बन जाएगा 1 और log 1 होएगा 0. log 1 0 हो गया तो pH और pKa इक्वल आ जाएंगे. सो एग्जामिनर कैन आस्क क्वेश्चन इन दिस वे कि व्हेन pH equals to pKa, तो इन दैट वे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन और एसिड की कंसेंट्रेशन इक्वल होनी चाहिए. बेटा ये जो सॉल्ट लिखा हुआ है इट कुड बी अ बेस एज वेल. ठीक है, ओके. अगर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होएगी एसिड से तो बेटा रिमेंबर दिस पॉइंट कि pH भी ज्यादा होएगी pKa से. If the concentration of salt is equals to the concentration of acid, in that way pH equal होएगी
pKa के। ऑल राइट, सो अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है और एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो इन दैट वे pH इज लेस देन pKa, यानी कि वाइस वर्सा ही होएगा इस एक्सप्रेशन के। ये हैंडरसन इक्वेशन इंपॉर्टेंट है बफर सॉल्यूशन की pH, जो कि वीक सॉल्यूशंस की pH निकालनी होती है। सो फॉर दिस थिंग वी हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, बफर सॉल्यूशंस के लिए। तो अगर pH की हम बात कर रहे हैं सो वी हैव अदर एक्सप्रेशंस एज वेल। कैलकुलेट किस तरह से pH वैल्यूज को किया जाता है। सो आई हैव मेंशन्ड वन ऑफ द एक्सप्रेशंस ओवर हियर, pH इक्वल्स टू नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोजन आयन। बेटा ये जो P होता है ना, इट मींस नेगेटिव log। ये जो P होता है इट मींस नेगेटिव log। अगर POH होता तो आप क्या लिखते? नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अगर आपको कहा जाए pKa, व्हाट डज इट मीन? ये देखो, दिस इज pKa ना, सो इट मींस ये जो P है दैट इज नेगेटिव log, सो Ka हो जाएगा, ठीक है। pKa इक्वल्स टू नेगेटिव log ऑफ Ka। सो इसी तरह से pKb क्या होएगा? Negative log of Kb, that is for base. Ka is the constant, dissociation constant for acids. Kb is the dissociation constant for a base. So, बेटा ये pH का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है नेगेटिव log of हाइड्रोजन आयन। अगर आपको कहा जाए कि हाइड्रोजन आयन की वैल्यू फाइंड आउट करें एंड यू आर गिवन विद द pH, तब क्या करोगे? तो उसके लिए एक आसान सा एक्सप्रेशन है बेटा। हाइड्रोजन आयन को अगर हम निकालना चाहते हैं सो वी कैन यूज द सेम एक्सप्रेशन, हाइड्रोजन आयन इक्वल्स टू 10 की पावर नेगेटिव pH। सो बेटा हाइड्रोजन आयन निकालना होएगा, सो ये जो pH होएगी ये पावर में आ जाएगी, 10 बेस यूज की जा रही है, 10 की पावर नेगेटिव pH। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया a solution is having 3 pH, so what is the concentration of hydrogen ion of that particular acid solution? अगर आपको pH दी गई है 3 तो 10 की पावर नेगेटिव 3 करें, सो बेटा वही आपके पास आ जाएगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस इस एक्सप्रेशन को यहां से ड्राइव किया बाय यूजिंग द लोग्स रूल। ओके, समटाइम्स क्वेश्चन आपको दिया जाता है, pH आपको दे दी जाती है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द pOH ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बेटा रिमेंबर वन पॉइंट कि जो भी pH होता है और pOH होता है इनका जो सम होएगा दैट इज इक्वलेंट टू 14। pH इक्वल्स टू 14 माइनस pOH, और यू कैन से pH प्लस pOH इक्वल्स टू 14। So pH plus pOH equals to 14, और बेटा ये जो 14 है that is actually pKw। तो वहीं से हम एक और एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, pKa plus pKb equals to pKw, क्योंकि 10 की पावर माइनस 14 जो होता है that is the value of Kw, 10 की पावर माइनस 14 Kw होता है। तो बेटा अगर इसी का नेगेटिव log ले लिया जाए तो pKw बन जाएगा, सो दिस वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव 14। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन यहां से ड्राइव किया जा सकता है, ठीक है। सो बेटा pKa इक्वल्स टू नेगेटिव log ऑफ Ka। अब एग्जामिनर के क्वेश्चंस किस तरह से इस एक्सप्रेशन से पूछे जा सकते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट कि जितनी ज्यादा Ka की वैल्यू होएगी उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होएगी। जितनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होएगी उतनी ही pH लो होएगी, और जितनी ही pH लो होएगी या एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी ही ज्यादा होएगी बेटा pKa उतनी ही स्मॉल होएगी।
यानी कि के ए और पी के ए एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन। ये एक सीक्वेंस अगर याद कर लेते हो, इंशाल्लाह आपके जितने भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे यू कैन इजीली अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस जो कि पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पॉइंट बनता है के ए और पी के ए में क्या रिलेशनशिप है। के ए वैल्यू अगर ज्यादा है तो पी के ए वैल्यू कम होएगी। सो सिमिलरली बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इफ के ए वैल्यू इज 10 की पावर -6 देन के बी वैल्यू इज, बेटा जो सम होना चाहिए वो के डब्ल्यू के इक्वल होना चाहिए। के ए प्लस के बी इक्वल्स टू के डब्ल्यू, एंड वी नो के डब्ल्यू इज अ कांस्टेंट ऑफ वाटर, डिसोसिएशन ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू होती है 1.0 इंटू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमने बनाना है 10 की पावर -14। के ए की वैल्यू इज गिवन टू यू, दैट इज -6। तो बेटा के बी कितना होना चाहिए, सम करना है ना, तो दैट इज 10 की पावर -8। ऑल राइट, होप सो ये क्वेश्चन आसानी से आपने क्रैक कर लिया होगा। इसी तरह से आपसे पी के ए की वैल्यू गिवन हो तो पूछा जा सकता है पी के बी क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन अभी आपसे मैं जो पूछ रहा हूँ, दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन ध्यान से सुने। इफ द पी के ए वैल्यू इक्वल्स टू 6, सो व्हाट वुड बी इट्स पी के बी वैल्यू। ठीक है, इसका आंसर आपने मेंशन करना है। Okay, so now moving towards this expression, Ka equals to h square divided by Ha, हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय Ha है। बेटा ये एक्सप्रेशन तब यूज किया जाता है when we will have weak bases और weak acids। बेटा अगर weak acid है तो ये एक्सप्रेशन तब यूज होएगा for weak acids। Remember this point। और ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए ये यूज करेंगे और वीक एसिड्स के लिए ये यूज करेंगे। वीक एसिड्स विच पार्शियली आयनाइजेस एंड प्रोड्यूसेस लेस हाइड्रोजन आयन, वो होते हैं बेटा वीक एसिड्स, जिनमें अगर इलेक्ट्रोड्स को ऐड किया जाए या रॉड्स को ऐड किया जाए विच आर कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होएगा इट ग्लोज, लेकिन उसकी लाइट जो होएगी डिफ्यूज होएगी। लेकिन जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो उसकी ग्लो जो होगी वो बहुत ज़्यादा ब्राइटर होएगी, ब्राइट लाइट ऑब्जर्व करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए एक्सप्रेशन भी ये यूज करेंगे। फॉर द वीक एसिड्स विल यूज दिस एक्सप्रेशन। ओके, सो बेटा अगर आपको एग्जामिनर कहता है लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस क्वेश्चन, कैलकुलेट द के ए वैल्यू, के ए ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। वी आर गिवन विद दिस थिंग 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ HCOOH, और we are having the 2 pH वैल्यू हमें गिवन है। So beta by using this thing can we find out the expression HCOOH के लिए हाइड्रोजन आयन को अगर हमने निकालना है we have the pH वैल्यू Ka को किस तरह से कैलकुलेट करना है। So बेटा Ka की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपके पास Ka का एक्सप्रेशन लिख लो, Ka इक्वल्स टू हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Ha। सो बेटा Ha तो हमें गिवन है, इसकी कंसंट्रेशन तो हमें गिवन है, दैट इज 0.1, बट वी डोंट हैव हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, बट वी हैव अ pH वैल्यू ओवर हियर जो कि दी हुई है 2। तो बेटा वी कैन यूज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस वन, हाइड्रोजन आयन इक्वल्स टू 10 की पावर -2। तो बेटा दैट इज इक्वलेंट टू 0.01। So I can put that value over here
0.01 का स्क्वायर अगर होएगा, सो इट मीन 0.01 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1. तो बेटा इसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो वी विल गेट 0.001. दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, जो कि KA के इक्वल आ जाएगा. सो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दीज एक्सप्रेशंस. अब सेकंड क्वेश्चन में अगर फोकस करें, वी हैव टू फाइंड आउट द POH वैल्यू of 0.01 mole HCl. बेटा in this question we are given with the concentration of an acid, और acid से relevant question है. तो बेटा acid का हम POH डायरेक्टली कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते. acid है तो उसकी pH निकाली जाएगी. So इसकी हम पहले pH कैलकुलेट करेंगे. pH equals to, we know that, negative log of hydrogen ion. तो बेटा HCl can dissociate only one hydrogen ion. तो आफ्टर डिसोसिएशन यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन आयन होएगा और उसी की वैल्यू आ जाएगी 0.01. बेटा 0.01 को कैन आई राइट इन दिस वे, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर -2. बेटा रिमेंबर दीज पॉइंट्स, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है आपको. तो जो log 10 होता है दैट इज इक्वलेंट टू log 10 की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वलेंट टू 1. That is 1. अगर log 100 होएगा तो its value is 2, क्योंकि ये 10 की पावर 2 आ गया. Similarly log 10 की पावर अगर -1 है तो its answer would be -1. Similarly we have log 10 की पावर -2. तो बेटा इसका रिजल्ट क्या आएगा? -2. सो नेगेटिव साइन तो वैसे का वैसा ही और आ गया -2. आंसर क्या आ गया बेटा? दैट इज 2. सो वी फाइंड आउट द pH वैल्यू ऑफ दिस HCl सॉल्यूशन. सो बट एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द POH वैल्यू. तो बेटा pH जैसे ही निकाल लिया, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम द POH और pH, बिकॉज वी हैव एन एक्सप्रेशन pH प्लस POH इक्वल्स टू 14. So pH अगर 2 है, so by using this expression we can find out the POH value as well. तो POH कितना हो जाएगा? That is 12. So POH of 0.01 mole per cubic decimeter. This capital M is mole per cubic decimeter HCl. So POH value is 12. Okay. So have a look over the last question, that is calculate the pH of solution. बेटा दिस सॉल्यूशन इज द बफर सॉल्यूशन. कैसे पता चल रहा है? बिकॉज वी हैव अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वी हैव अ वीक एसिड एज वेल. वीक एसिड है और उसी का सॉल्ट है. सो दिस इज समवट लाइक बफर सॉल्यूशन. तो बफर सॉल्यूशन की जब भी pH फाइंड आउट करनी होती है, वी हैव टू यूज द हेंडरसन इक्वेशन. हेंडरसन इक्वेशन इज pH इक्वल्स टू pKa प्लस log इनटू सॉल्ट ओवर एसिड. तो बेटा लेट्स calculate this one now. We are given with the pKa value and we have to find out the pH value. So pKa plus log into salt की value कितनी given है यहाँ पे? This one is an acid and this one is salt, that is 0.9. So it is divided by 0.09. तो बेटा 0.9 is divided by 0.09, that is equivalent to 0.1. pKa value is given to you, that is 4.87. Put that value over here. 4.87 plus log 0.1. तो बेटा log 0.1 means 10 की पावर -1. 10 की पावर -1 का जब log लेते हैं तो इट इज इक्वलेंट टू -1. सो बेटा आंसर क्या आ जाएगा? 4.87 प्लस log 10 की पावर -1 इक्वल्स टू -1 आ गया. सो आंसर इज 3.87. तो बेटा ये आ गई आपके पास pH ऑफ द सॉल्यूशन. इस बफर सॉल्यूशन की pH इज 3.87. In this way, examiner can ask questions to you. So, inshallah, we'll cover all the content
इन दिस वे कि किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है और की कॉन्सेप्ट क्या होंगे. स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू वेरी मच.